Welcome dear students. Today we are going to start module 2 of engineering chemistry. This is video lecture number 1. This module is related to boiler problems and softening methods of water. Water is very important engineering material which is mainly used for the production of steam in boilers. It is essential requirement for the industries and powerhouses. So the water is called boiler feed water. The boiler feed water should be free from dissolved calcium and magnesium salts. If the boiler feed water contains such impurities beyond the prescribed limits, they lead to the problems called boiler problems. Contents we will discuss in this video for this module are boiler problems और ट्रबल्स. यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन, प्राइमिंग एंड फोमिंग, boiler corrosion, caustic embrittlement. In softening methods, we will discuss lime soda method, zeolite method, and ion exchange method, and numericals related to softening methods. So what is boiler? बॉयलर को हम स्टीम जनरेटर भी कहते हैं. ये वो डिवाइस है जिसे स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है. सो बॉयलर और स्टीम जनरेटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम बाय अप्लाइंग हीट एनर्जी टू वाटर. Now uses of steam. For power generation, direct heating purposes in pharmaceutical and food industries, beverage industry, sizing and bleaching in the textile industry, in atomization. Atomization ensure a better combustion of fuels. In humidification, soil sterilization, antimicrobial cleaning, wood bending, killing insects and increasing plasticity. Steam is used for melting hardened grease and oil residues. These are important uses of steam. Now boiler feed water. Water is mainly used in boilers for the generation of steam for industries and powerhouses. सो बॉयलर फीड वाटर में से हमें सभी इम्प्यूरिटीज एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं होती है. हम सिर्फ वही इम्प्यूरिटीज को एलिमिनेट करते हैं जो टॉलरेबल लिमिट से अधिक होती हैं और बॉयलर में ऑपरेशन ट्रबल्स का कारण बनती हैं. जो इम्प्यूरिटीज बॉयलर में ऑपरेशनल ट्रबल्स क्रिएट करती हैं वही इम्प्यूरिटीज हमको एलिमिनेट करनी होती हैं. इसलिए बॉयलर फीड वाटर में कंपोजिशन निम्न प्रकार का होना चाहिए. से फॉर एग्जांपल इट्स हार्डनेस शुड बी बिलो 0.2 ppm.
Its caustic alkalinity due to hydroxide ion should lie in between 0.15 ppm to 0.45 ppm. Its soda alkalinity due to sodium carbonate should lie in between 0.45 ppm to 1 ppm. Excess of impurities if present in water. अगर वाटर में impurities बहुत अधिकता में present हैं तो बॉयलर में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, बॉयलर करोजन, caustic embrittlement and carry over. Now specification for boiler feed water. It should be free from hardness. अगर वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट होगी तो बॉयलर में स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन हो जाएगा. ऑर्गेनिक मैटर, ऑयल एंड ग्रीस की प्रेजेंस बॉयलर फीड वाटर में फोमिंग का कारण बनेगा. डिसॉल्व्ड गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, मिनरल एसिड्स बॉयलर में बॉयलर करोजन करते हैं. अगर एल्कलिनिटी वाटर में प्रेजेंट है तो ये कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है. टर्बिडिटीज एंड सेडिमेंट्स, फैट इत्यादि की प्रेजेंस बॉयलर में कैरी ओवर नामक प्रॉब्लम क्रिएट करती है. Now boiler problems. First is scale and sludge. Second is boiler corrosion. Third is caustic embrittlement. Fourth is carryover. Carryover is of two types, priming and foaming. So scale and sludge. Boiler में वाटर कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेट होता है, स्टीम बनती है, तो जो सॉल्ट्स हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो सैचुरेट होने लगते हैं और फाइनली बॉयलर के उन पोर्शंस में डिपॉजिट हो जाते हैं जहां वाटर का फ्लो कम होता है. सो वी कैन से व्हेन हार्ड वाटर is used for boilers. अगर हम हार्ड वाटर का बॉयलर में यूज करते हैं, on continuous evaporation the salts present in the hard water gets saturated and finally deposited in the areas where the flow is slow. So sludge, जब हमारा deposition जो है salts का लूज और स्लाइमी नेचर का है उसे हम कहेंगे स्लज. When precipitates formed are loose and slimy in nature, that is called sludge. स्केल क्या होता है? जब भी प्रेसिपिटेट जो बनता है वो हार्ड है और स्ट्रांगली चिपका रहता है, एडहर रहता है बॉयलर की इनर वॉल पर, उसे हम कहते हैं स्केल. When the precipitates formed are hard and adhere strongly on the inner walls of the boiler, that is called scale. This is sludge. Loose precipitate suspended in water. Here we can say the dots. This is loose precipitate suspended in water. And this is scale. Hard adhering coating on the inner walls of boiler, that is called scale. Now sludge. Definition of sludge. Causes of sludge, disadvantages and preventions. These are the headings जिसके अंदर हम स्लज को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे.
यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं लूज स्लाइमी प्रेसिपिटेट जो है वो वाटर में सस्पेंडेड है, इसे हम स्लज कहते हैं। नाउ डेफिनेशन, sludge is a soft, loose and slimy precipitate formed within the boiler. Sludge formation in boiler, क्यों sludge formation boiler में होता है? जब भी बॉयलर में ऐसी इम्प्यूरिटीज होती हैं जो हॉट वाटर में ग्रेटर सॉल्युबिलिटी रखती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी सॉल्युबिलिटी हॉट वाटर में अधिक होती है, उनके कारण स्लज बनते हैं। उन सब्सटेंसेस के या इम्प्यूरिटीज के एग्जांपल्स हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। These substances have greater solubilities in hot water. अब ये कहाँ बनते हैं? ये कोल्डर पोर्शन एरियाज में बनते हैं बॉयलर के, जहां पर वाटर का फ्लो रेट कम होता है और स्लजेस को हम आसानी से वायर ब्रश की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। अगर स्लज स्केल्स के साथ बनता है तो स्लज के ऊपर जो है स्केल की लेयर आ जाती है और स्लज और स्केल दोनों ही डिपॉजिट हो जाते हैं स्केल के फॉर्म में। If sludges are formed along with the scale, then former gets entrapped in the latter. So दोनों के दोनों स्लज और स्केल के फॉर्म में ही डिपॉजिट हो जाते हैं। इस क्रिया में क्या होता है? स्लज जो है स्केल्स से एंट्रैप हो जाता है, यानी कि उसके अंदर दब जाता है। Disadvantages of sludge formation: decrease the efficiency of boiler. Sludge formation बॉयलर की क्षमता को कम कर देता है। क्यों? आइए देखते हैं। क्योंकि स्लजेस जो हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, तो जब हम स्टीम फॉर्मेशन करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फ्यूल जो है वो वेस्ट करना पड़ता है हीट जनरेट करने के लिए, जिसके कारण बॉयलर की एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। स्लज फॉर्मेशन डिस्टर्ब्स द वर्किंग ऑफ बॉयलर। स्लज फॉर्मेशन के कारण बॉयलर की वर्किंग में व्यवधान आता है। क्यों आता है ये हम देख लेते हैं। स्लजेस जो होते हैं वो सेटल्स इन द रीजन ऑफ पुअर वाटर सर्कुलेशन, जहां फ्लो रेट कम होता है, जैसे कि पाइप कनेक्शन, प्लग ओपनिंग्स, गॉज ग्लास कनेक्टिविटी। तो ये क्या कर सकते हैं, ये उन प्लेसेस को चोक कर देते हैं, पाइप्स को चोक कर देते हैं, जिससे बॉयलर की वर्किंग जो है क्या है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ स्लज फॉर्मेशन। स्लज फॉर्मेशन से हम किस तरह से बच सकते हैं? सॉफ्ट वाटर का यूज करके हम स्लज फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। बॉयलर में समय समय पर अगर ब्लो डाउन ऑपरेशन किया जाए तो भी स्लज फॉर्मेशन से प्रिवेंशन किया जा सकता है। अब स्लज फॉर्मेशन है हमारा, इट इज पार्शियल रिमूवल। क्या है ये? पार्शियल रिमूवल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड वाटर थ्रू अ टैप एट द बॉटम ऑफ बॉयलर when extent of hardness in the boiler becomes alarming high. जब बॉयलर में हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि पानी इम्प्यूरिटी से बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, उस वाटर को पानी के प्रवाह द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया ब्लो डाउन ऑपरेशन कहलाती है। नाउ स्केल, हम इसका देखेंगे डेफिनेशन, कॉजेस, डिसएडवांटेजेस एंड प्रिवेंशन। हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम। ब्लैक coated material is scale. It is hard adherent coating on inner walls of boiler. This is scale.
Now definition of scale. Scales are hard deposits firmly sticking to the inner surfaces of the boiler. Scales को remove करना difficult होता है even with the help of hammer and chisel, and these are the main source of boiler troubles. Scale formation in boiler. Scales may be formed inside the boiler due to decomposition of calcium bicarbonate. Decomposition of calcium bicarbonate gives calcium carbonate in the form of scale. अगर हम लो प्रेशर बॉयलर की बात करें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉफ्ट नेचर का है और स्केल फॉर्मेशन का ये मेन कॉज रहता है। लेकिन हाई प्रेशर बॉयलर में कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो वाटर में सॉल्युबल रहता है। Second cause of scale formation is deposition of calcium sulfate. The solubility of calcium sulfate in water decreases with rise of temperature. टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कैल्शियम सल्फेट की solubility वाटर में कम होती जाती है। जैसे कि हम देखें 15 डिग्री सेल्सियस पर कैल्शियम सल्फेट की जो solubility है वो होती है 3200 पार्ट्स पर मिलियन, जो कि 230 डिग्री सेल्सियस पर 55 पार्ट्स पर मिलियन हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर और सुपर हॉट वाटर, जिसके कारण कैल्शियम सल्फेट जो है वो हार्ड स्केल के फॉर्म में बॉयलर की इनर वॉल पर डेपोजिट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है वो हाई प्रेशर बॉयलर्स में देखने को मिलती है और इस टाइप का जो स्केल है वो बहुत डिफिकल्ट होता है रिमूव करने के लिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ स्केल कॉजेस ट्रबल्स इन मेनली हाई प्रेशर बॉयलर्स। दिस स्केल इज या फिर कैल्शियम सल्फेट स्केल इज क्वाइट एडहेरेंट, बहुत अच्छी तरह से ये बॉयलर की इनर वॉल पर स्टिक रहता है जिससे रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। Now hydrolysis of magnesium salts. Dissolved magnesium salts undergo hydrolysis at high temperature inside the boiler. It forms magnesium hydroxide precipitate which forms a soft type of scale. यहाँ हम मैग्नीशियम क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस देख रहे हैं जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट कर रहा है। हाई टेम्परेचर पर बॉयलर के अंदर मैग्नीशियम सॉल्ट्स की प्रेजेंस जो है वो हाइड्रोलाइज होती है और हाइड्रोलाइसिस के द्वारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक सॉफ्ट टाइप का स्केल फॉर्म हो जाता है। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ सिलिका। सिलिका SiO2 अगर थोड़ी भी क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ मिलकर कैल्शियम और मैग्नीशियम सिलिकेट को बना लेता है और ये सिलिकेट्स बॉयलर की इनर वॉल पर बहुत फर्मली स्टिक हो जाते हैं जिन्हें रिमूव करना बहुत कठिन होता है। If a small quantity of silica is present, जिनका डिपोजिशन कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट के फॉर्म में बॉयलर की इनर वॉल पर हो जाता है, जो बहुत फर्मली स्टिक रहते हैं, चिपके रहते हैं बॉयलर की इनर वॉल पर, जिन्हें रिमूव करना बहुत कठिन होता है।
Now, disadvantages of scale formation. Wastage of fuel. Sludges की तरह scales भी poor thermal conductivity के होते हैं, so the rate of heat transfer from the boiler to inside water greatly reduced. अब जब हमें स्टीम बनाने के लिए स्टेडी सप्लाई ऑफ हीट हम वाटर को जब देते हैं तो एक्सेसिव हीटिंग या ओवर हीटिंग करनी होती है, जिसके कारण फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है. सेकंड, लोअरिंग ऑफ बॉयलर सेफ्टी. स्केल फॉर्मेशन के कारण स्टीम जनरेशन के लिए हमको बॉयलर को ओवरहीट करना पड़ता है, जिससे बॉयलर मटेरियल सॉफ्ट और वीक हो जाता है, जिसके कारण बॉयलर ट्यूब डिस्टॉर्ट हो सकती है, उसका शेप चेंज हो सकता है, जिसके कारण बॉयलर अनसेफ हो जाता है. So, due to the scale formation, overheating of the boiler is done in order to maintain a steady supply of steam. It makes the boiler material softer and weaker. This causes distortion of boiler tube and also makes the boiler unsafe due to high pressure of steam. ये जो हमें देखने को मिलता है, ये हाई प्रेशर बॉयलर्स में देखने को मिलता है. Decrease in efficiency. Deposition of scales in the valves and condensers of the boiler choke them partially. This results in decrease in efficiency of boiler. जब boilers के valves and condensers scales deposition के कारण चोक हो जाएंगे तो boiler की क्षमता steam generation की कम हो जाएगी. Fourth is danger of explosion. When thick scales crack due to uneven expansion, the water comes sudden in contact with overheated portion and large amount of steam is formed instantaneously. This results in development of sudden high pressure which may cause explosion of the boiler. स्केल्स में क्रैक्स होते हैं जिनमें वाटर जो है कांटेक्ट में आता है. तो जब वाटर ओवरहीटेड पोर्शन के कांटेक्ट में आता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेट हो जाती है, जिसके कारण बॉयलर ट्यूब में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जो बॉयलर एक्सप्लोजन का कॉज हो सकता है. नाउ प्रिवेंशन ऑफ स्केल्स. स्केल्स को हम स्क्रैपर और वायर ब्रश की हेल्प के साथ रिमूव कर सकते हैं जबकि ये इनिशियल स्टेज में बना हुआ हो. इफ स्केल्स आर ब्रिटल दे कैन बी रिमूव्ड बाय थर्मल शॉक्स. By using suitable chemicals like dilute acids for calcium carbonate scale. कैल्शियम कार्बोनेट स्केल को हम डाइल्यूट एसिड्स में डिसॉल्व करके स्केल्स से प्रिवेंशन कर सकते हैं. और कैल्शियम सल्फेट अगर प्रेजेंट है वाटर में, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट जो परमानेंट हार्डनेस वाटर में प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके स्केल्स को रिमूव कर सकते हैं. अगर स्केल लूजली अडहरिंग है तो उसे हम फ्रीक्वेंटली ब्लो डाउन ऑपरेशन के द्वारा रिमूव कर सकते हैं. नाउ डिफरेंस बिटवीन स्लज एंड स्केल्स. स्लजेस आर सॉफ्ट, लूज एंड स्लाइमी. Scales are hard deposits. They are non-adherent. They stick firmly to the inner wall of boiler. Sludges can be easily removed, but scales are very difficult to remove.
Sludge causing substances are calcium chloride, magnesium sulfate and magnesium carbonate. Scales forming substances are calcium sulfate, magnesium hydroxide, calcium carbonate and calcium and magnesium silicates. Sludges are formed at comparatively colder portion of the boiler, but scales are formed generally at heated portion of the boiler. Sludges decrease the efficiency of boiler, but sludges are less dangerous. Scales decrease the efficiency of boiler and chances of explosion are also there. Sludges can be removed easily by blow down operation, but scales cannot be removed by blow down operation.